اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آج جولائی کی 18 تاریخ ہے. 12ویں جماعت کے لیے آج جو ہمارا موضوع ہے شاعری کی حقیقت. شبلی نعمانی کا لکھا ہوا یہ مضمون ہے. لیکچر نمبر اس موضوع کے حوالے سے یہ لیکچر نمبر 3 ہے ہمارا آج کا. میں پڑھتا ہوں آپ دھیان رکھنا. جو چیزیں دل پر اثر کرتی ہے بہت سی ہے، موسیقی، مصوری، صنعت گری وغیرہ، لیکن شاعری کی اثر انگیزی کی حد سب سے زیادہ وسیع ہے. کون کون سی چیز دل پر اثر کرتی ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل پر اثر کرتی ہے. موسیقی، جب ہم موسیقی سنتے ہیں تو وہ دل پر اثر کرتی ہے. تو کبھی خوشی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، کبھی غم کے آثار پیدا ہوتے ہیں. اگر ہم کوئی مووی دیکھتے ہیں اس میں جو میوزک ہوتا ہے، اگر یا تو خوشی کے جذبات اس سے ابھر سکتے ہیں یا غم کے جذبات ابھر سکتے ہیں. جس قسم کا واقعہ ہو اسی طرح کے جذبات دل میں ابھرتے ہیں. مصوری، جب کوئی مصور ہوتا ہے جو مصوری کرتا ہے، جو تصویر کھینچتا ہے، جب وہ کسی چیز کی ہو تصویر کھینچتا ہے تو اس تصویر کو دیکھ کر بھی ہم متاثر ہوتے ہیں. مثلا ہم قدرتی مناظر کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بہترین مصور ہے، تو ان میں ہم کھو جاتے ہیں. یا کوئی مصور جو ہوتا ہے انسانی روپ میں جو مصور ہوتے ہیں، تو جب وہ کسی چیز کی تصویر کھینچتا ہے اس سے بھی ہم متاثر ہوتے ہیں. دیکھو کیسی خوبصورت تصویر کھینچی ہے. تصویر صرف قلم کے ذریعے ہی نہیں کھینچی جاتی ہے، بلکہ صرف رنگ روگن سے نہیں بلکہ الفاظ کے ذریعے سے بھی ہم کسی چیز کی تصویر کھینچتے ہیں جو محاکات میں آتا ہے. صنعت گری، اور کوئی صنعت گر جو صنعت و حرفت کا مالک ہوتا ہے، جو چیزوں کو تراشتا ہے، بناتا ہے، سنوارتا ہے، تو اس کی کاریگری کو بھی دیکھ کر ہم متاثر ہوتے ہیں. ہمارے دل میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے. لیکن شاعری کی اثر انگیزی کی حد سب سے زیادہ وسیع ہے. لیکن جس طرح سے شاعری سے ہم اثر انگیز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو شاعری، جتنا زیادہ شاعری ہمیں متاثر کرتی ہے اس سے زیادہ ہمیں کوئی چیز متاثر نہیں کر سکتی ہے. یعنی کہ اس کی حد زیادہ وسیع ہے. یعنی کہ جس طرح کے جذبات شاعری سے ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں، ابھرتے ہیں، اور جو اثر ہمارے دل پر شاعری سے ہوتا ہے وہ کسی دوسری چیز سے اتنا نہیں ہوتا. موسیقی جو ہے صرف قوت سامع کو محظوظ کر سکتی ہے. جو موسیقی ہے، اگر انسان میں قوت سامع ہے، سننے کی قوت ہے، قوت سامع سے مراد ہے سننے کی قوت. جب ہمارے کان سننے کے قابل ہوں تب ہم موسیقی سے محظوظ ہو سکتے ہیں، تب ہم موسیقی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. محظوظ کا مطلب ہے لطف اندوز ہونا. یعنی کہ موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے قوت سامع شرط ہے. یعنی کہ اس کے لیے کانوں کا ہونا، قوت سامع کا ہونا ضروری ہے. یعنی کہ سننے کی قوت انسان میں ہونی چاہیے. اگر کوئی انسان بہرا ہے اس کے سامنے اگر ہم موسیقی کا راگ الاپیں گے تو وہ بے سود ہے، بے فائدہ ہے. سامع نہ ہو تو اثر انگیزی تو کچھ کام نہیں کر سکتی. اگر سامع نہ ہو، اگر سننے کی قوت انسان میں نہ ہو تو موسیقی کسی کام کی، اس کے لیے کسی کام کی نہیں ہے. تصویر سے متاثر ہونے کے لیے بینائی شرط ہے. ہم کسی تصویر، اگر مصور نے کوئی تصویر بنائی ہے، ہم تب اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، متاثر ہو سکتے ہیں جب ہمیں قوت بینائی ہو، جب ہمیں دیکھنے کی قوت ہو. اگر کوئی اندھا ہے تو اندھے کے سامنے اگر ہم خوبصورت تصویر رکھیں گے تو وہ اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی بینائی، اس کو دیکھنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے. لیکن شاعری تمام حواس پر اثر ڈال سکتی ہے. اس کے برعکس شاعری جو ہے یہ انسان کے تمام حواس پر اثر ڈالتی ہے. مطلب کس کس حص پر یہ اثر ڈالتے ہیں. باصرہ، دیکھنے کی قوت بھی اس سے متاثر ہوتی ہے. ذائقہ، مزہ چکھنے کی قوت جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو ہم شاعری سے ذائقہ مزہ بھی چکھ سکتے ہیں. شمع سے مراد ہے سونگنے کی قوت، جو ہماری سونگنے کی قوت ہے وہ بھی شاعری سے متاثر ہو سکتی ہے. لمسہ سے مراد ہے چھونے کی قوت، لمسہ چھونے کی قوت، چھونے کی جو قوت ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتی ہے، شاعری سے متاثر ہوتی ہے.
सब इससे लुत्फ उठा सकते हैं। ये तमाम जो कुव्वतें हैं, यानी कि देखने की कुव्वत, मजा चखने की कुव्वत, छूने की कुव्वत या सूंघने की कुव्वत, ये तमाम हिस्स शायरी से मुतासिर होते हैं और इससे लुत्फ अंदोज होते हैं। फर्ज करो शराब आंखों के सामने नहीं है। ये इस मिसाल से समझाता है, अगर हमारी आंखों के सामने शराब नहीं है, इसलिए आंख इस वक्त उससे हद नहीं उठा सकती। तो जब तक न हमारी आंखों के सामने शराब लाया जाए, तब तक हमारी आंखें उससे लुत्फ नहीं उठा सकती है। यानी कि हमारी आंखें उसी चीज से लुत्फ उठा सकती है जो कुव्वत बासरा है। ये कुव्वत बासरा तभी मुतासिर हो सकती है जब इसके सामने कोई चीज हो। जब तक हमारी आंखों के सामने कोई चीज ना हो, तब तक हमारी आंखें उससे लुत्फ नहीं उठा सकती है। लेकिन जब एक शायर उसको आतश सयाल से ताबीर करता है, तो इन अल्फाज से एक मुवस्सिर मंजर आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन इसी शराब को समझने की बात है यहाँ, इसी शराब को जब शायर अपने शायराना अंदाज में उसको कहता है आतश सयाल। सयाल से मतलब है लिक्विड, लिक्विड आग। आतिश से मुराद है आग, आतिश से मुराद है आग। क्योंकि आग क्या होती है? आग एक ठोस चीज है, आग एक ठोस चीज है, ये सॉलिड होती है, आग सॉलिड चीज है। लेकिन ये इसे कहता है क्योंकि शराब का रंग आग की तरह सुर्ख होता है, लिहाजा ये इसे कहता है आतश सयाल, यानी कि लिक्विड लिक्विड फायर, लिक्विड फायर। यानी कि इसको कहता है ये लिक्विड फायर है। फायर क्यों कहा, आग क्यों कहा? आग इसलिए कहा क्योंकि ये जो आग है और शराब जो है, इनका रंग एक होता है, और इसको कहता है आतश सयाल। आतश सयाल यानी कि लिक्विड फायर इसको कहता है। जब इसको ये कहता है लिक्विड फायर, तो एक आंखों के सामने उसकी एक मंजर हमारी आंखों के सामने आता है। जब शराब को शायर कहता है आतश सयाल, तो इसका एक मंजर, इसका एक नक्शा हमारी आंखों के सामने आ जाता है। इसी तरह बोसा को शायराना अंदाज में तुम तुम शक्कर कह देते हैं। जैसे कि हम कहते हैं बोसा, बोसा किस, या तो इस क्वेश्चन पूछो ना मुन। ये जब शायर उसको शायराना अंदाज में तुम शक्कर कह देते हैं, यली आत्मना या से को म्यूट खंड, किस गो म्यूट खंड, तो कान व जबान को मजा महसूस होता है, कान को भी ये सुनकर मजा महसूस होता है। ये शायर छु बोसस वना, ये सो मनिस छु वना या से गो म्यूट शंकर, या से गो म्यूट खंड, तो अम सतन छु कान ये बोझान छु ये म्यूट खंड, अमन ते छु मज अम सत यवान। और जबान को भी मजा महसूस होता है। जबान ने इसका मजा तो चखा नहीं, मगर यूं ये मेचे छु बना म्यूट खंड, तो जबान को भी मजा आता है। यानी कि शायर का काम यह होता है कि ये अल्फाज के जरिए किसी चीज की इस तरह तस्वीर खींचता है, और शायरी में ये चीज है कि ये हमारे तमाम जो हिस्स है, जो हमारे तमाम हवास है, तमाम हवास पर असर डालती है। कौन? शायरी। इसके बरकस मौसीकी जो है, ये जो मौसीकी जो है या मसवरी जो है, सनतगरी जो है, ये हमारे कुछ हवास को मुतासर करती है। लेकिन शायरी एक वाहिद ऐसी चीज है जो हमारे तमाम हवास को मुतासर करती है। किसी चीज की हकीकत और माहियत के तायन करने का आसान इल्मी तरीका यह है, अगर हमें किसी चीज की हकीकत या इसकी माहियत यानी कि ये किन चीजों से बनी है, अगर हमें इसका तायन करना है, इस चीज को मुकर्रर करना है कि ये इसका आसान अमली तरीका ये है, इसका इल्मी तरीका क्या है, यानी कि अगर हमें किसी चीज की हकीकत जाननी है, ये चीज किन चीजों से मिलती जुलती है, किन चीजों से ये अलग है, कौन सी चीज इसको दूसरी चीजों से अलग करती है, या ये चीज किस चीज की बनी है, इसकी बनावट में कौन कौन सी चीज है, तो इसका इल्मी तरीका ये है कि पहले इसका कोई नुमाया वसफ ले लिया जाए। हमें कोई डिस्टिंग्विशड क्वालिटी इसकी लेनी है, कोई एक सिफत उसकी लेनी है, कोई एक वसफ उस चीज का, यानी कि जो दूसरी चीज में न पाया जाए। एक ऐसा वसफ हमें इस चीज में तलाश करना है जो वसफ किसी दूसरी चीज में न पाया जाए। फिर ये देखा जाए कि इस वसफ में और क्या क्या चीजें इसके साथ शरीक है।
फिर देखना है कि जो ये नुमायां वसफ है, डिस्टिंग्विश्ड क्वालिटी जो है, ये जो लामिसाल और बेनजीर ये जो इसमें सिफत है, और इस सिफत में और कौन कौन सी चीज शामिल है, इस वसफ में, इस क्वालिटी में और कौन कौन सी चीज शामिल है, फिर इन सिफात को एक एक करके मुतयन किया जाए। फिर हमें इनका तयन करना है, उनको मुंतखब करना है, उनको मुकर्रर करना है, जिनकी वजह से ये चीज अपनी और हम जिन चीजों से अलग और मुमताज होती गई है। कि फिर हमें देखना है कि इस चीज में ऐसी कौन सा वसफ है, कौन सी क्वालिटी है जो उसको दूसरी चीजों से मुमताज करती है, जो उसको दूसरी चीजों पर फौकियत देती है, और जो उसको दूसरी चीजों से अलाइदा करती है। मसलन इस कदर सब तस्लीम करते हैं कि शौहर का नुमाया वसफ जज्बात इंसानी को बरंगेज करना है। हम ये सब तस्लीम करते हैं कि शौहर का वसफ क्या है, शेर का वसफ क्या है, शेर का वसफ है इंसानी जज्बात को बरअंगेख्ता करना, बरअंगेख्ता करना। शार का नुमाया वसफ, उसका खास वसफ क्या है, शेर का खास वसफ यह है कि ये इंसानी जज्बात को भड़काता है, इंसानी जज्बात को उबारता है, इंसानी जज्बात को मुश्तअल करता है, इनको हरकत में लाता है, और यह शायरी का नुमाया वसफ है। जज्बात इंसानी को बरअंगेख्ता करना यानी उसको सुनकर बरअंगेख्ता कैसे करता है, यानी शेर को सुनकर दिल में रंज या खुशी या जोश का असर पैदा होता है। जब हम कोई शेर सुनते हैं, या हमारे दिल में रंज का असर होता है, या हमें तकलीफ पहुंचती है, या हम खुशी महसूस करते हैं, या हम में जोश पैदा होता है, यही असरात हम शायरी से कबूल करते हैं। किसी शायर से हम ये असर कबूल करते हैं कि हमें तकलीफ होती है, हमें रंज होता है और गम होता है। किसी शेर से हमारे दिल में खुशी के जज्बात उभरते हैं, और किसी शेर से हमारे दिल में जोश के जज्बात उभरते हैं। यह खुसूसियत शायरी को साइंस और उलूम व फनून से मुमताज कर देती है। ये एक ऐसी क्वालिटी है, ये एक ऐसा वसफ है कि यह खुसूसियत शायरी को साइंस और उलूम व फनून से मुमताज कर देती है। कि यह सिफत सिर्फ शायरी में है, साइंस में ये चीज नहीं है कि ये इंसान के जज्बात को मुतासिर नहीं करती है। और शायरी के बगैर जो दूसरे उलूम है, चाहे वो समाजी उलूम है, मजहबी उलूम है, जो भी जिस किस्म का भी कोई इल्म है, इल्म की जुमा है उलूम, और जो भी फनून है, जो भी कोई फन है, ये तमाम फनून जो है, ये तमाम उलूम जो है, ये तमाम जो ये साइंसी इल्म है, शायरी को यही चीज मुमताज करती है, उन पर फौकियत है कि यह इसकी डिस्टिंग्विश क्वालिटी है। क्योंकि शायरी से हम जिस तरह मुतासिर होते हैं, जो असर शायरी हमारे दिल पर करती है, न साइंस वो असर डाल सकती है, न कोई दूसरा इल्म, न कोई दूसरा फन हमारे दिल पर वो असर डाल सकता है। शायरी का तखातुब जज्बात से है। शायरी का काम क्या है, शायरी किस चीज से गुफ्तगू करती है, यह हमारे जज्बात से गुफ्तगू करती है। और साइंस का यकीन से, साइंस जज्बात से गुफ्तगू नहीं करती है। साइंस किसको एड्रेस करती है, साइंस हमारे यकीन को यानी कि साइंस उसी चीज को तस्लीम करता है जो उसके तजुर्बे में आए, जो उसके मुशाहिदे में आए, जो एक्सपेरिमेंट में आए, तो उसी चीज को साइंस तस्लीम करती है। यानी कि साइंस यकीन से गुफ्तगू करती है, और शायरी जज्बात को एड्रेस करती है। शायरी हमारे जज्बात को एड्रेस करती है, और साइंस जो है ये यकीन को एड्रेस करती है। यानी कि साइंस उस चीज को तस्लीम ही नहीं करती है जो उसके तजुर्बे, जो उसके मुशाहिदे में नहीं आती है। साइंस इस्तिदलाल से काम लेता है। साइंस हर बात का लॉजिक चाहता है, दलील चाहता है, सबूत चाहता है, और शायरी महरकात का इस्तेमाल करती है। शायरी महरकात का इस्तेमाल करती है। महरकात से मुराद है अल्फाज के जरिए किसी चीज की इस तरह खूबसूरत तस्वीर खींचना कि वो पूरा मंजर हमारी आंखों के सामने आ जाए। इस तरह से हमने आज ये लेक्चर नंबर 3 शायरी की हकीकत, जो हमारा मौजू था शुबली नमानी का, लेक्चर नंबर 3 हमारा मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला ने चाहा इसी मौजू पर हम कल बशर्ते जिंदगानी, कल हम इस पर बात करेंगे, इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। बाकी वसल्लम।